Dear friends, today we are here to have a seminar on United Nations Sustainable Development Goal number 16, that is peace, harmony, peace, justice and strong institution. And for that purpose, we are having as the resource person of the day Sri Chandra Prakash Priyadarshi ji, who is a PCS officer, Uttar Pradesh cadre, and who is currently custodian of the university, Madan Mohan Malviya University of Technology, offering his services as registrar, Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. And since December 4, 2024. So far as the background of our resource person of the day, Sri C.P. Priyadarshi Sahab ji, he was born on 17 September 1970. His home district is Jaunpur, Uttar Pradesh. His educational background includes Bachelor of Engineering BE from Kamala Nehru Institute of Technology, KNIT Sultanpur, and he is having a civil servant career as the civil services officer. He entered service entry as Provincial Civil Services PCS on 24th of August 2018. Even before that, he used to offer his services as Deputy Tahsildar, served in district of Balia, Azamgarh, Bhadohi, Mirzapur and Gorakhpur. And he also offered his services as Deputy Collector, Gorakhpur, and Competent Authority of GAIL India Private Limited, Lucknow. He has been Deputy Collector, Lucknow, City Magistrate, Bulandshahr, and now because of his academic interest, he joined and took over the job as Registrar, Madan Mohan Malviya University of Technology. Sir, we are lucky to have you with us as the resource person for this event. I know that your academic interests are flourishing and is having abundance of knowledge into Indian classics, and not only Indian classics, your range of knowledge covers with the great sense of rationality, and for that purpose you are a rich resource for the day, and I hope that all the participants will be benefited by your enriching knowledge. I can see that Professor Radha Gautam ma'am from Gujarat University is university serving professor in the university, offering his services to Gujarat, is also there. Welcome you, ma'am, and we welcome you to the forum out of your academic interest, and you spared your time. We are highly thankful to all the participants. Namaskar, ma'am. I can see your namaste popping over there. And then, without wasting much time, I would like to hand over the dice to the resource person of the day, and Engineer C.P. Priyadarshi Sahab, and he is having a great knowledge, an in-depth knowledge in Indian classics, and that too in the languages of Sanskrit and classical languages, Sanskrit, Pali and Hindi and English.
and even beyond that. So, without wasting a time, the podium is handed over to the sir. धन्यवाद विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह को, मेरा ढेर सारा आभार। उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया और सभी उपस्थित लोग में डॉक्टर अंजलि सिंह जी, सोनिया भट्ट जी, उग्रसेन जी, डॉक्टर जावेद आलम, रोहिना प्रसाद जी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं। वास्तव में अभी हम लोग कुछ दिन पहले जिन चीज़ों से उबरे हैं वो स्थिति ये थी कि विश्व एक अशांत की ओर बढ़ रहा था और आज की ये आवश्यकता कि हम विश्व में शांति की तलाश करें और शांति कैसे पाई जा सकती है इस पर विचार कर सकें, ये एकदम समसामयिक विषय है और इस पर हमें आज विचार करना है कि उस शांति को पाने के लिए शांति हमारी मंजिल है, शांति हमारी मंजिल है, लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए किस संसाधन और किस आधार भूमि की आवश्यकता होती है, इसी को आज हम समझेंगे। पहले तो हम ये समझें कि शांति वास्तव में क्या है। शांति को अभी तक लोग ऐसा समझते हैं कि शांति एक युद्ध न होना, शांति ऐसे उसका आशय समझते हैं। युद्ध अगर न हो तो शांति होगी, ऐसा कुछ मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति वास्तव में केवल युद्ध न होने की स्थिति नहीं है, बल्कि शांति का आशय होता है कि प्रत्येक जड़ या चेतन, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, वो अपने प्राकृतिक रूप से विकसित हो सके, उसके अंदर जो उसका प्राकृतिक इनहेरेंट गुण है वो विकास कर सके और जिस माहौल में विकास कर सके उसको कहते हैं शांति। इसीलिए आप पाएंगे कि हमारे भारतीय जो प्राच्य साहित्य हैं या उपनिषद हैं, उसमें जब भी किसी उपनिषद की शुरुआत होती है तो उसके प्रारंभ में एक शब्द, एक मंत्र आता है जिसको हम लोग कहते हैं शांति मंत्र। आश्चर्य करेंगे कि उन शांति मंत्रों की शुरुआत केवल मानव या प्राणियों के लिए नहीं होती, बल्कि जिनको हम जड़ समझते हैं, जिनको निर्जीव समझते हैं, उनकी शांति से भी प्रारंभ होता है। शांति मंत्र में आता है कि ओम द्यौ शांति है, अंतरिक्ष शांति है। इस तरह से क्रम है कि पहले हम द्युत यानी जो हमारी ऊर्जा है ब्रह्मांड में, ओम द्यौ शांति है, अंतरिक्ष शांति है, पृथ्वी शांति है, आपः शांति है, इस तरह से शांति मंत्र है। बाद में आता है सर्वे देवाः शांति है। देवाः का मतलब उपनिषदों में पाएंगे तो उसका मतलब होता है, उसका आशय होता है, हमारे संसारगंश को ही हमारे उपनिषद में देव कहा गया है, क्योंकि शांति की शुरुआत अगर हम करें और शांति पे विचार करना प्रारंभ करें तो अशांति का स्रोत ये हमारे संसारगण ही होते हैं। संसारगण में ही वो लालसा पैदा होती है जिसके नाते हम लालच करते हैं और लोभ करते हैं। लालच, लोभ, आसक्ति से ही अशांति का प्रारंभ हो जाता है। जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक जब कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो वहीं से अशांति का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए उसमें आया है सर्वे देवाः शांति, यानी हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, छठी इंद्रिय के रूप में कहा जाता है, हम अपनी इंद्रिय को जब संतुलित करेंगे, उनकी पिपासा को, उनकी इच्छाओं को जब हम संतुलित करेंगे, क्योंकि जब कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबके लिए, सबकी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए सामग्री और संसाधन उपलब्ध है,
सबकी आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती हैं, इतना संसाधन जो है उपलब्ध है प्रकृति में। लेकिन किसी के लोभ के लिए पूरी पृथ्वी कम पड़ जाती है। अभी आपने जो युद्ध देखा होगा और कई जगह अभी चल रहे हैं, वह किसके लिए है? संसाधनों के लिए। तो संसाधनों की असीमित आकांक्षा क्यों उत्पन्न होती है? पहले हम व्यक्ति से ही शुरू करते हैं। तो व्यक्ति के लिए जो शांति होती है, इस पर अभी विस्तृत वार्ता करेंगे। उसके पहले बता दें कि शांति को पाने का मार्ग क्या होगा। इस शांति को पाने का मार्ग होगा न्याय, और न्याय को मजबूत करने के लिए हमारे लिए आवश्यक होगी संस्थाएं। इसीलिए 3 विषय रखे गए। मंजिल हमारी शांति है, माध्यम हमारा न्याय है, और उसका जो आधार भूमि है वो संस्थाएं हैं। तो अब हम शांति से प्रारंभ करते हैं कि मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं, अगर वह बैठ करके एक बार विचार करे, उसके लिए कितनी चीज़ों की, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय की जो सुख प्राप्त करने की सीमा है, और वो सीमा के अंतर्गत ही, जैसे अगर बहुत अधिक भोज्य पदार्थ भले स्वादिष्ट हों, शरीर प्रकृति इस ढंग से निर्मित है कि बहुत अधिक भोज्य पदार्थ को भी वो ग्रहण कर सकेगी, तो फिर पचा नहीं सकेगी। तो ये जो शांति का अर्थ है, ये इंद्रिय संतुलन जब नहीं होता है, यानी पहले मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, तब भौतिक अशांति के रूप में वो दिखती है। तो मानवीय शांति का पहला पहलू है कि हम जो है इसके मानसिक स्तर पर विचार करें। अगर हमारी मानसिक शांति आ जाती है, इसलिए भारत में एक शब्द है स्वास्थ्य, भले अन्य भाषाओं में शब्द है हील, हेल्थ, जिससे हील से ही हेल्थ बना है, लेकिन भारत में एक शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब है जब हम स्व में अवस्थित हो जाएं, यानी ये भौतिक शांति और मानसिक शांति दोनों की बात करते हैं। यानी हम कहीं, हमको बहिर्मुखी न होना पड़े, हम जितनी चीज़ें प्राप्त हैं या जो हमारे आवश्यकताओं की है उनको प्राप्त करके हम सुख और आनंद का अनुभव कर सकें। तो ये होता है स्वास्थ्य। हील का तो मतलब होता है कुछ कमी है, पूर्ति हो जाए। बहुत बार आपको ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, तो शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट होंगे, लेकिन स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि उनमें मानसिक शांति नहीं होगी। तो अब हमको जो गोल प्राप्त करना है, तो पहले तो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें। मानसिक स्वास्थ्य हमेशा शारीरिक स्वास्थ्य से होता है, जो हमारी दिनचर्या है, जिसके लिए हमारे मनीषी लोग भी कह गए हैं और हमारी संस्कृत भी है कि हम शरीर को संतुलित रखें। शरीर को संतुलित रखने के लिए योगासन जैसी चीज़ें हैं, और योगासन करने के बाद जब शरीर संतुलित हो जाता है, तब हम मन संतुलित, और जिसको कि मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन भी अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी के मेडी रूट वर्ड से बना है। मेडी माने हम बीच में स्थित हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे यहाँ एक मान्यता व्याप्त है कि हम हर चीज़ को छोड़ दें, त्याग कर दें, ऐसा नहीं है। यानी संन्यास नहीं करना है और न तो हमको अधिक भोग करना है, बीच में हमें खड़े होना है। मध्यम मार्ग जो है वो खड़े होना है। तो मध्यम मार्ग पर खड़े होने के लिए पहले हमको एक संकल्पना मन में लानी पड़ेगी, जो भौतिक विज्ञान से भी सत्य है और अपने आध्यात्मिक जो हमारे ज्ञान है उनसे भी वो समर्थित है। वो हमारा ज्ञान क्या है? वो आता है, अगर ईशोपनिषद में देखें तो एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कहा जाता है कि यह पूर्ण जो है, जो व्यक्ति पूर्ण है, अगर उसमें से या ब्रह्मांड भी पूर्ण है, व्यक्ति भी पूर्ण है, उसमें कुछ मिला दिया जाए तब भी उसकी पूर्णता पर कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी अंतर नहीं पड़ता। इस तरह पूर्ण की संकल्पना की गई, या जिसे कहें कि आज गणित के अनुसार समझें तो ये अनंत की संकल्पना है। अनंत में से अनंत अगर निकाल लें तो अनंत ही शेष बचता है। आप सोचेंगे कि यह संकल्पना मैं क्यों रख रहा हूँ?
यह संकल्पना इसलिए रखी जा रही है कि इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़कर ही पूर्ण होती हैं। पूर्णता का जब ये आभास होता है कि हम एक व्यक्ति हैं और दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति के साथ और प्रकृति के अन्य अवयवों के साथ मिलकर ही पूर्ण होंगे, यानी ये संपूर्ण विश्व अपना ही एक अंग होगा, अपनी ही एक काया होगी। जब यह संकल्पना मन में आ जाती है तब हम किसी का नुकसान नहीं करते। तब हमारे मन में जो आता है वो यही आता है, जैसे अभी शरीर के अंग को ले, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बाएं हाथ से दाएं हाथ के बीच में संघर्ष शुरू हो, क्योंकि बायां हाथ भी हमारा है और दायां हाथ भी हमारा है। अगर बाएं को कोई चोट पहुंचेगी तो भी हमें ही दुख होगा, या दाएं को चोट पहुंचे तो भी हमें ही दुख होगा। ये जो एकत्व की भावना है कि सभी चीज़ें एक हैं, जो कि प्रकृति के लिए एक शब्द का यूज होता है, उसको कहते हैं निसर्ग। निसर्ग का मतलब सभी कुछ एक है, उसमें सर्ग नहीं बटे हैं, चैप्टर्स नहीं बटे हैं। तो ये जो निसर्गता का आभास है, यही जब हो जाता है, और ये होता है ध्यान आदि की प्रक्रियाओं से या विचार मंथन से। बैठे, जो हम लोगों की एक पूर्व धारणा रही है कि प्रश्न करें, गोष्ठियाँ हों, सभा हो, जहाँ हम लोग एक दूसरे के प्रश्नोत्तर से एक दूसरे को जान सकें। जब तक एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक एकत्व का अनुभव नहीं होगा। हम स्वयं को भी जानें और दूसरे के भी क्या भाव हैं इसको समझने का प्रयास करें, तब हम सापेक्ष नहीं रहते। तो ये सापेक्षता का दृष्टिकोण मिटने के लिए आवश्यक है कि हमारे भीतर संवाद का एक प्रवाह कायम रहे, संवाद का एक ये कहें परंपरा रहे। वैदिक काल में भी गोष्ठियाँ होती थी और संवाद होते थे। हमारे यहाँ एक शब्द है सभ्यता। वास्तव में सभ्य कहते ही उसे है ऐसा समाज जो अपने सारे निर्णय सभा से लेता है। सभा शब्द से ही सभ्यता जुड़ी है। जब निर्णय सभा से लिया जाता है, यानी तमाम लोग उसमें मौजूद रहते हैं, सभी के विचारों का सम्मान होता है, तो वो होती है सभा। तो सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं और उस निर्णय से जब समाज चलता है तो उसे कहते हैं सभ्य समाज, यानी जो सभा के आधार पर चलता है। तो अब हम आते हैं कि हमारा शारीरिक उद्देश्य और मानसिक उद्देश्य अगर पूरा हो गया, यानी हमारे भीतर लालसाएँ नहीं हैं। लालसा का मतलब आवश्यकताएं तो हैं, आवश्यकता पूर्ति भी होनी चाहिए। एक बड़ी महीन रेखा है आवश्यकता और लोभ के बीच में। शरीर की जैसे आवश्यकता है, उसके लिए घर चाहिए, उसके लिए रोटी चाहिए, उसके लिए वस्त्र चाहिए, ये हो गया आवश्यकताएं। अब आवश्यकताओं में लालच कैसे समझ पाएंगे? लालच ऐसे समझते हैं हम कि हमारे लिए एक घर नहीं 5 घर होना चाहिए, हमारे ग्लैमर के लिए घर होना चाहिए, वस्त्र हमारे ग्लैमर के लिए होने चाहिए। ये हमारी हो गई लोभ। तो लोभ और आवश्यकताओं के बीच जब हम फर्क करना सीख जाए तो व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव बढ़ेगा। वास्तव में हम ये सारे जो सरंजाम रचते हैं, ये दूसरे को कमतर और अपने को उच्चतर दिखाने के लिए रचते हैं। यदि हम ये समझ लें कि सभी एक तरह से हैं, एक समान हैं, तब हम शायद जितनी चीज़ों का अपने लिए उपयोग कर रहे हैं वो हम दूसरे को भी प्रदान करना चाहिए। जो हमारा एक उपनिषदीय सूत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी त्याग के साथ भोग करें। भोग करने को कहीं मना नहीं किया गया, सुख प्राप्त करने को कहीं नहीं मना किया गया, लेकिन त्याग के साथ उपयोग, यानी जो आप चीज़ उपयोग कर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे समाज को क्या मिल रहा है। क्योंकि जब समाज अस्तित्व में नहीं रहेगा तो एक दिन व्यक्ति भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो समाज और व्यक्ति को हम ये दोनों के बीच का जो संयोजन है इसको समझें, और जब इसको समझ लेंगे तब हम आते हैं अब कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीज़ चाहिए। सबसे प्रथम होता है सम्मान चाहिए, दूसरा होता है उसे सुरक्षा चाहिए, और तीसरा चाहता है वो संभाव,
कि उसके साथ सब समान भाव से रहें। यही 3 चीज़ हमको कौन देता है? न्याय प्रणालियाँ देती हैं। न्याय का मतलब होता है कि हमारी गरिमा सुरक्षित रहे, हमारी सुरक्षा रहे, हमारे जीवन की सुरक्षा रहे और सबके साथ हमारा वही व्यवहार हो जैसा अपने साथ चाहते हैं। यह है संभव। यह चीज़ें, यह लक्ष्य जो प्राप्त किया जाता है, यह न्याय से प्राप्त किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जस्ट क्या है। अगर कोई चीज़ हमें समझना हो कि उचित क्या है, तो सबसे इसका सटीक कसौटी है कि हम ये समझें कि हम अपने साथ कैसा व्यवहार पसंद करते हैं। लेकिन हम अपने साथ कैसा व्यवहार पसंद करते हैं, यह जानने के लिए पहले यह भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारा मानसिक निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि कभी कभी अभी कुछ चीज़ देखने में आएगी कि जैसे स्त्रियों के संबंध में अगर हम जब देखते हैं तो बचपन से उनके अंदर ऐसा भाव भरा जाता है जैसे कि गृह के स्वामी की सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। उनको आदर्श से बचपन से पढ़ाया जाता है तो बाद में उन्हें यह आदर्श लगने लगता है। तो मानसिक कल्पनाओं का कैसे निर्माण हुआ है, मानसिक कल्पनाएं कैसे निर्मित हुई हैं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है और इसके लिए आवश्यक होती है शिक्षा। तो शिक्षा जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा का मतलब होता है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान हमेशा पूर्व में भी रहा, पश्चिम में भी रहा। पश्चिम में आप जानते होंगे सुकरात के संबंध में एक बात कहना भी आवश्यक है। सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया तो उनसे कहा गया कि आप समाज में भड़काते हैं लोगों को ऐसी बातें सोचने को मजबूर करते हैं कि वो राज्य का विद्रोही हो जाता है। तो उनको प्राणदंड दिया गया। प्राणदंड के एक दिन पहले उनके शिष्य थे प्लेटो ने जिला का वो जो कारागार होता है, राज्य कारागार, उसके किसी कर्मचारी से बात भी कर ली थी, जैसा कि मिलता है उद्धरणों में, और उन्होंने इनके भागने की व्यवस्था भी कर दी थी। तो सुकरात से आकर के प्लेटो ने कहा कि गुरुदेव आप भाग सकते हैं, जान बच सकती है। तो सुकरात ने उनके सामने 3 चीज़ें रखी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, राज्य के प्रति अगर विद्रोह नहीं करना चाहिए, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि राज्य जो है वो कानून को एक मानवीय दृष्टिकोण से कानून को बनाए। अगर ऐसा कानून नहीं बना है तो हम कानून को बदलवाने का प्रयास करें। इसके लिए लोगों को समझाएं कि कानून कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर न हम कानून बदलवा पा रहे हैं और न राज्य इस बात को समझ रहा है, तो जब तक हम राज्य क्षेत्र में हैं हमको कानून का पालन करना होगा। यानी सॉक्रेटिस जैसा व्यक्ति कह रहा है कि हमको कानून का पालन करना होगा, क्योंकि अगर हम जैसे बुद्धिजीवी कानून का पालन नहीं करेंगे तो बाकी भी लोग नहीं करेंगे। जबकि राज्य के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनसे समाज का कल्याण भी हो रहा है, तो उनका कल्याण बाधित हो जाएगा। इसलिए मैं राज्य से, जब तक इस राज्य क्षेत्र में हूँ, मैं इस राज्य के कानून का पालन करूँगा। ये होती है निष्ठा। विद्रोही भी थे, ध्यान दीजिए, एक तरफ विद्रोह भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर राज्य का कानून जब तक नहीं बदल जाता तब तक इस क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ, तो उसके कानून का पालन करूँ। अब कानून बदलते क्यों नहीं हैं? उसका कारण 2 होता है। प्रत्येक राज्य सत्ता हमेशा चाहती है कि वो जनता के अनुसार कार्य करे, क्योंकि जनता के अनुसार कार्य न करने पर बड़ी से बड़ी सत्ताएं भी हटा दी जाती हैं। लेकिन सत्ताएं क्या करती हैं? सत्ताएं लोगों के मानसिक लेवल को ही चेंज कर देती हैं। जो चीज़ अनुपयुक्त है प्रजा को वो उपयुक्त लगने लगता है, जनता को वो उपयुक्त लगने लगता है, और उसी के लिए राज्य सत्ता से मांग करने लगती है। जैसे अगर एक परिदृश्य का उदाहरण लें हम, इजराइल और ईरान में अभी युद्ध हुआ। दोनों देशों के विचारक या दोनों देशों की जनता केवल ये सोचती रही अपने राष्ट्र गौरव में या राष्ट्रभक्ति में कि हमको विजय प्राप्त हो। वो उन मानवीय मूल्यों को ध्यान में नहीं दे रही है।
अगर दोनों अपने राज्य सत्ताओं पर दबाव डालते कि नहीं ये युद्ध नाजायज है, क्योंकि वास्तविक युद्ध वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों के लिए हो रहा है और जनता इस बात को न समझकर वो देश की ओर मुड़ रही है कि हमारे देश का क्या होगा। तो जनता में कम से कम इतना विवेक होना चाहिए कि वो अपने राज्य सत्ताओं पर दबाव डाले, और जिस दिन जनता दबाव डालने लगेगी राज्य सत्ताएं स्वयं वही कार्य करेंगी। लेकिन होता क्या है कि राज्य सत्ताएं जनता को मीडिया के माध्यम से, तमाम शिक्षा के माध्यम से उनको जो है इस तरह का बना देते हैं कि लोग उस ओर सोचते तक नहीं। तो उसको जो है, इसके लिए ज़रूरी है हमारी की रेशनल थिंकिंग वाली शिक्षा, जिससे हमारी जनता इस काबिल हो कि वो न्याय को समझ सके, उन संकल्पनाओं को समझ सके, तब वह राज्य सत्ता पर दबाव डाले। यह होता है एक सम्यक जनता का निर्माण। कैसे सम्यक जनता का निर्माण? हमेशा सम्यक शिक्षा से होगा, और वह सम्यक शिक्षा के लिए हमको रेशनल होना पड़ेगा। रेशनल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको विविध स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करनी होगी, जिससे हम उसको एनालाइज कर सकें, जिसको हम उसको व्याख्यायित कर सकें। समर्थन में और दोनों तरफ की चीज़ों को हम देखेंगे तभी कोई निर्णय ले सकेंगे, सही निर्णय। वरना हम कभी कभी अति विश्वास में और कभी कभी अंधविश्वास में चले जाते हैं। किसी भी आदर्श को लेकर विश्वास में और अंधविश्वास में जाते हैं। इससे दूर रहने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को समभाव से विचारित करें, और यही न्याय होता है। न्याय तभी आता है जब हम तटस्थ भाव से दोनों के विचारों को और दोनों के साक्ष्यों को, दोनों के भावों को समझने का प्रयास करें। जिसके भाव को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं वो सुशिक्षित होना चाहिए, वो अपने भावों को रख सके, अभिव्यक्त कर सके। तो ये न्याय प्रणाली जो है, जिसमें हमारी पुलिस आती है, न्यायपालिका आता है, प्रशासन आता है, इसका कार्य है कि ये पारदर्शी प्रशासन दे, यानी कोई चीज़ जनता से गोपनीय न रहे। तब एक पारदर्शी न्याय प्रणाली जब होगी तभी जनता भी उस पर विश्वास कर सके। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था और इस प्रशासनिक प्रणाली को सम्यक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसके निर्माण के लिए क्या होगा? क्योंकि इसमें जो लोग भाग लेंगे, जो न्याय व्यवस्था में होंगे, जो प्रशासन में होंगे, उनका निर्माण करने के लिए हमें संस्थाओं की आवश्यकता है। हमारे पास संस्थाएं होंगी जो उन्हें नियंत्रित करेंगी। नियंत्रित करने का मतलब नहीं होगा कि उन पर बलपूर्वक कंट्रोल, बल्कि संस्थाएं क्या करती हैं? विमर्श करती हैं। संस्थाओं की आवश्यकता है विमर्श। संस्थाओं की आवाज़ें दबाई न जाएं, ये होती है संस्था के लिए आवश्यक है। अगर संस्थाएं जिस दिन मिट जाएंगी, हमारी सामाजिक संस्थाएं मिट जाएंगी, तो उनका अगला चरण होगा सत्ता हमेशा पब्लिक पर शासन करना चाहती है। लेकिन हम एक नए युग में आ रहे हैं। जब से लोकतंत्र आया है तब से ये कहा जा रहा है कि जनता स्वयं पर अपना शासन कर सके, स्व अनुशासन। लेकिन स्व अनुशासन की संकल्पना तभी पूर्ण होगी जब हम जनप्रतिनिधि पैदा करें। अभी हम जनप्रतिनिधि उत्पन्न नहीं करते हैं, हम लीडर पैदा कर रहे हैं। गलती कहाँ हो रही है? हम लीडर पैदा कर रहे हैं। लीडर का मतलब होता है कोई एक है जिसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, और वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हम इसको विमर्श नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं लीडर हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके, लेकिन ये सत्य नहीं है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है जनप्रतिनिधि का होना, यानी हमारी बातों को कोई आगे रखे, न कि अपनी बातों को हम पर ला दे। तो अभी ज़्यादातर विकासशील देशों में जनता का कोई विचार ही नहीं बन पाता, उसके पहले लीडर एक विचार लेकर आ जाते हैं। जनता के बीच में स्वयं संकल्पना नहीं रहती कि हमारा विकास कैसे होगा, और जनता के बीच में इसलिए नहीं रहती कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है, और उसके लिए हम ही को प्रयासरत रहना होगा। हम अपनी अगली पीढ़ी को उस स्तर तक ले जाएं तो वो सुशिक्षित हो सके,
सुशिक्षित का मतलब विचार विमर्श कर सके, तर्क कर सके। जब हम जनता में विमर्श की जनता उत्पन्न कर लेंगे तब जाकर हम लीडरों से मुक्ति पाएंगे, तब हम अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे। और जब प्रतिनिधि होंगे तो वो संस्थाओं का संरक्षण करेंगे। संस्थाएं इसीलिए निर्मित होती हैं कि हम उनमें प्रतिनिधियों का निर्माण कर सकें, प्रतिनिधि भेज सकें। विश्व की जो इस समय वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आवश्यक है कि ये जो संसाधनों का होड़ लगा हुआ है, ये संसाधनों की होड़ बंद हो। संसाधनों के होड़ को हम लोग तमाम सत्ताएं राष्ट्रभक्ति से जोड़ रही हैं, यह भी बंद हो, क्योंकि संसाधन मानव के लिए हैं। सत्ताएं मानव अपने जनता को ही ऐसा प्रदर्शित कर देती हैं कि जैसे लगता है उनकी जीत हो गई, लेकिन वास्तव में हार जनता की हो जाती है। जब युद्ध होते हैं तमाम हमारी वैज्ञानिक विभूतियाँ मारी जा रही हैं, हमारे शोध संस्थान नष्ट कर दिए जाते हैं। मैं हमारे इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम मान के चलते हैं तो चाहे ईरान के वैज्ञानिक मरे हों या इजराइल के वैज्ञानिक मारे जा रहे हों, कम से कम हमारी ये तो है कि हमारी ही वैज्ञानिक प्रतिभाएँ हैं, हमारी ही पृथ्वी की वैज्ञानिक प्रतिभाएँ हैं जो नष्ट हो गई, हमारे ही वो शोध संस्थान है जो नष्ट हो गए, हमारे ही वे मानवीय संबंध हैं जिनमें आज नफरत खड़ी हो गई। वास्तव में अगर इस विमर्श को जनता के बीच में ले जाकर के राष्ट्र से अलग हट के सोचा जाए तो नुकसान मानवता का ही होता दिखेगा। और सत्ताओं का अपना युद्ध है, सत्ताएं समझौता भी कर लेती हैं, वो भी न जनता से पूछा जाता है, न तो कोई जनता से मत लेता है कि हमको समझौता करना है, न तो जनता से कोई ये भी मत लेता है कि मुझे युद्ध करना है। तो ये परिस्थिति चल रही है वर्तमान में, और उसका भुक्तभोगी कौन होगा? हम ही लोग। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक विमर्शशील छात्र, विमर्शशील विद्वान और विमर्शशील नागरिक को उत्पन्न करे, जिससे ये जो अशांति है, वैश्विक अशांति, इससे हम लोग मुक्ति पाएँ और सब कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के पथ पर आगे बढ़ सकें और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तमाम नैसर्गिक स्रोतों का आनंद उठाते हुए शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत। इन्हीं सब लोगों के साथ समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों से हम लोगों को सारगर्भित रूप में अवगत कराया। समस्या ये है कि जब हम आज के वैश्विक परिदृश्य को देख रहे हैं तो जैसा कि आपने अक्षरशः सत्य कहा कि लीडर पैदा हो रहे हैं, और लीडर भी ऐसे हैं कि आजकल इस भूगर्भ की धरा पे, भूमंडल में एक मिस्टर सीज फायर है, जिनका काम है कि दो देशों में जाके युद्ध पहले इंस्टिगेट करो, फिर सीज फायर करो, और फिर उसके बाद ही वांट टू बी द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पीस। ही वांट टू बी वाई एनी टॉक ऑफ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कब तक ये, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू बी सस्टेनेबल टॉक ऑफ पीस, जहाँ पे कि ये परिदृश्य किसी का पहले तो स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर स्टैंड लेके वो सामने आता है तो ये नहीं समझ आता कि उसके स्टैंड में पीस कितना है और पॉलिटिक्स कितना है। एंड पीस, इफ पीस is cocktailed by politics, so I think that it is going to make the world into pieces. वो शांति, स्वायत्तता, समझौते थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। कई देश
जो है कह लीजिए कि बौद्धिक दिवालियापन तक युद्ध में धंसे हुए। अभी फ्रांस की एक घटना से मैं सबको बताना चाहूँगा। कल परसों वहाँ एक कल्चरल इवनिंग का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों के ऊपर सिरिंज अटैक किया गया। कोई सिरिंज मार के कुछ इंजेक्ट करके चला गया। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी वेयर वी नीड टू टॉक अबाउट जस्टिस एंड justice delayed is equal to justice denied, it is said. When we talk about the injustice made to the people in the name of imposing supremacy on others, तो how long ये गेम चलता रहेगा कि अपनी वरिष्ठता अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक कोई यूनाइटेड नेशंस की बात आती है। उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आइडेंटिफाई किए जिसमें अभी वर्ल्ड की रेटिंग आई है और मंगलवार के दिन रेटिंग आई है जिसमें इंडिया को 99th रैंक पे रखा गया है, जिसका क्वालिटी इंडेक्स अगर माना गया कि 17 गोल में अगर 100 इंडेक्स है सबका अचीव्ड हो गया तो वो कंट्री 100% सस्टेनेबल है। बट वो उस इंडेक्स में इंडिया को 99th रैंक मिला और रैंक इंडेक्स हमारा था 67। हम जब ये देखते हैं कि 10 से टॉप 10 में से हमें लगता है मैक्सिमम कंट्रीज यूरोप के थे। सस्टेनेबल सिटीज़ की बात आती है, बिना टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किए जो है लाइफ में इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ में अभी हमने देखा कि 3 शहर जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं एंड वो सिडनी है और मेलबोर्न है और एक और शहर है, अभी दिमाग में उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस छद्म सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स को अचीव करने में हाँ एडिलेड और जो है सिडनी मेलबोर्न 3 शहर वहाँ से हैं और मेलबोर्न सबसे ऊपर है उनके सस्टेनेबल मोस्ट लिव वर्दी सिटीज़ ऑफ दी वर्ल्ड। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट इज़ दी वे आउट, क्योंकि अभी जब हम पीस जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशंस तो अपने आप में एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, इतने सारे कंट्रीज का ग्रुप है। देन देयर आर इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। समवेयर हम जब इंस्टीट्यूशन को बात करेंगे हमें तो बड़ा गर्व होता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, आस पड़ोस के किसी भी कंट्री को देख लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इवन नेपाल हो, पावर हंगर में सत्ता परिवर्तन कितनी बार हुआ। और आज हम लोग जो है मतलब जो पावर पॉलिटिक्स के उससे हटके कहीं हम लोग एक यूनाइटेड सोसाइटी के रूप में आगे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशन दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। लेकिन इससे ये बोस्ट नहीं किया जा सकता वी आर द बेस्ट। समवेयर वी नीड टू फोकस ऑन द ग्लोबल सिनेरियो। आपने जो बौद्धिक परंपरा के सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के आज तक का जो परिदृश्य खींचा, उस रेखांकन में कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है सर वैक्यूम भी क्रिएट हो रहा है, और वो वैक्यूम को कैसे ब्रिज अप किया जाए ताकि कंट्री तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो ही पाए अच्छे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन की तरह, लेकिन ग्लोबल पीस एंड हार्मनी जो इतने मतलब बेतरतीब लोगों का माइंड सेटअप हो गया है कि एनी टॉक ऑन पीस कैन नॉट बी सक्सेसफुल
until and unless complete disarmament of the nuclear weapons are there. जैसे हमारे भारत का स्टैंड है कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे न्यूक्लियर वेपन, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी जमींदोज कर दें, ख़त्म कर देंगे अगर पूरी धरती से न्यूक्लियर वेपन हटा दिए जाए। तो ऐसे परिवेश में इन चुनौतियों के बीच में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक मेरा थोड़ा सा प्रश्न है और इस पे हम आपका उपायों पे प्रकाश जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी जो ग्लोबल परिदृश्य है भौगोलिकता का, उसमें जस्टिस टू एनिमल एंड जस्टिस टू फ्लोरा एंड फाउना, उनको भी जीने का हक है, उनके भी अस्तित्व का हक है और उनको कैसे हम जो है सस्टेन करें, प्रिजर्व करें, एंड हाउ कैन वी इंश्योर बेटर वर्ल्ड, बेटर अर्थ फॉर एवरीवन। तो इन परिचर्चाओं पे आपका थोड़ा सा ओपिनियन चाहेंगे और मार्गदर्शन चाहेंगे कि कैसे हम यूनाइटेड नेशंस का जो ड्रीम है उसको, तो एक अलग बात है क्योंकि अगर इस तरह से वार होता रहा तो कहीं पीस, वार एंड पीस टॉक कैन नॉट गो टुगेदर हैंड इन हैंड, समवेयर वी नीड टू एस्टेब्लिश a road map for that and that we need to adhere strictly. So over to you. धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके द्वारा उन विशेष प्रश्नों को उठाने के लिए। और पहला प्रश्न यही है कि यूएन जैसी संस्थाएं लाचार और निरीह क्यों दिख रही हैं, और अगर ऐसा वैश्विक स्तर पर हो रहा है तो उसका क्या मतलब क्या है, उसमें कैसे क्या किया जाए कि वो संस्थाएं कार्यरत हो सकें। देखिए, पहले हमको एक सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम 1789 से मतलब उस फ्रांस की क्रांति को देखें तो फ्रांस की क्रांति वास्तव में जन क्रांति थी। यानी जब जनता यूएन का बने, संयुक्त राष्ट्र संघ बने, ये जनता की ओर से अगर बात आई होती, लेकिन ये बात किसके द्वारा आई थी? अगर हम लोग इस सत्य को अंधेरे में न प्रकाश में देखें, अंधेरे में न देखें, वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्तिशाली देश थे उन्हीं लोगों ने मिलकर के यूएन बना दिया। यानी जनता ने वो, अगर सच को स्वीकार करें तो जनता की संस्था नहीं रही, वो वास्तव में एक पॉलिटिकल संस्था ही थी जो कमज़ोर देशों को एक तरह से उनको अपनी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए और वीटो पावर के देशों को अभिव्यक्ति पूरी तरह से प्रदान करने के लिए वो संस्था बनाई गई। उस संस्था के अगर देखें तो वहाँ समभाव का ही, जो न्याय की पहली व्यवस्था है समभाव, तो वहाँ समभाव का पालन ही नहीं दिखता। जिस जगह ऐसा हो जाए कि वोटिंग की वैल्यू हो जाए, यानी मत का मूल्यांकन एक समान न हो, अब वहाँ 5 देशों के पास तो वीटो पावर, 5 या 6 जो भी हैं, बाकी के पास नहीं है। तो यूएन को ठीक है राष्ट्रीय स्तर पे बनी हुई है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो पॉलिटिकल माइंडसेट से बनाई गई संस्था है। हमको एक जनतांत्रिक संस्था के रूप में, इसीलिए कह रहा हूँ कि जनतांत्रिक, जैसे अभी एक उदाहरण दूंगा कि अमेरिका द्वारा जो कार्रवाई अभी ईरान और इजराइल युद्ध में की गई, तो वहाँ उनके जनता द्वारा भी, या उनके कहिए जनता का तो नहीं दिखेगा उतना, लेकिन मीडिया द्वारा स्वयं विरोध किया गया। यानी मीडिया एक तरह से जनता का अभिव्यक्ति है वहाँ, अभी अभिव्यक्ति की इतनी छूट है। और खुद राष्ट्रपति ट्रंप उन CNN और कौन सी मीडिया है जिसके ऊपर वो गुस्सा करते हुए दिखे। यानी अगर हमारी मीडिया और हमारी जनता, जब नागरिक जिस स्तर के होंगे उसी स्तर की मीडिया होगी। नागरिक जिस क्वालिटी का समाचार चाहेंगे, जिस क्वालिटी का विमर्श चाहेंगे, उसी क्वालिटी का विमर्श मीडिया को देना पड़ता है। भले हो सकता है कुछ कम समय के लिए मीडिया अपनी दूसरे रास्ते पर जाना चाहे, लेकिन नागरिक उसे मोड़ सकता है। तो पहले तो हम देखें कि हमारे नागरिकों की इच्छाएं क्या हैं, उनकी अभिव्यक्तियां क्या हैं। लेकिन नागरिक अभिव्यक्ति देखने के पहले हम देखें कि वो नागरिक हमारी
शिक्षा दीक्षा के जिस स्तर से आए हैं वहाँ वातावरण कैसा रहा है, वहाँ का वातावरण वैश्विक विचार का रहा है या किसी एक क्या कहेंगे समूह के विचार का रहा है। क्योंकि तरह तरह के वाद चलते रहते हैं, इज्म चलते रहते हैं, कभी कहा जाता है दक्षिणपंथी, वामपंथी और तरह तरह के विचारों में लगता है कि हमारे बौद्धिक लोगों को इंसर्किल्ड कर दिया जाता है कि भाई आप इस टाइप के विचारधारा के हैं, आप या इस टाइप के हैं। उन इज्म से हम बाहर आए, उन वाद से हम बाहर आए और एक रेशनल विचार है। तो जब वो विचार की स्थिति पे आएंगे, जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह वैसा है, लेकिन अभी ये देखने में आया है कि अमेरिका का दबाव राष्ट्रपति पर पड़ रहा है कि भाई अचानक युद्ध में आप क्यों कूद गए। ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर है, वो कूदे, लेकिन जनता अभी इतनी जागरूक है, तो जनता में इतनी जागरूकता कम से कम होनी चाहिए कि जिससे उसके पॉलिटिकल लीडर को मालूम हो कि अगर हम यह कदम रखेंगे तो जनता विरोध कर जाएगी। मतलब हम उस स्थिति में न चले जाए, क्योंकि एक उदाहरण आता है पानी में मेढक गर्म होने का उदाहरण एक है कि जिसमें एक केतली में, खुली केतली है, उसमें एक मेढक है और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो उसको लगता था ठीक है अभी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बाद में बाहर निकल जाएंगे। तब तक अचानक परिस्थिति बदलती है और उसको लगता है कि नहीं, अब तो उसके मांसपेशियों में इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो उछल सके और वो पानी में उबल जाता है। तो कहीं की भी नागरिक परिस्थितियाँ अचानक नहीं बिगड़ जाती हैं, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता रहता है और उस डिग्रेडेशन में ही पब्लिक को जागरूक होकर के हमेशा प्रत्युत्तर देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि विद्रोह करना चाहिए, अपने प्रत्युत्तरों में, अपने अभिव्यक्ति में सत्य को स्वीकार करते हुए बताते रहना चाहिए, जिससे बातें ऊपर तक जाती रहें, वरना कोई भी देश नॉर्थ कोरिया एक दिन में नहीं बन जाता है, धीरे धीरे वो तानाशाही के गिरफ्त में आता है। या जैसे अभी एक आ रहा था, मैं देख रहा था प्रकरण जिसमें ये था कि अभी अमेरिका में ही है, एक घटना कल हुई है कि एक इजरायली नागरिक ने वहाँ एक छोटे बच्चे को एयरपोर्ट पर उठा के पटक दिया। कारण क्या है, उसके अंदर नफरत बहुत ज़्यादा भर गई है मुस्लिम देशों के प्रति लेकर के। अब ऐसी ही नफरत अगर अध्ययन किया जाए तो हिटलर के समय में यहूदियों के प्रति रही हो। ये वास्तव में साधारण जनता की नहीं होती, साधारण जनता में बार बार बचपन से जब से वो पढ़ रहा है विचार इंजेक्ट किए जाते हैं, धीरे धीरे वो विचार इंजेक्ट होते होते एक ऐसा लेवल पहुंच जाता है कि फिर वो उसको आदर्श लगने लगता है। तो जब विचार गलत विचार इंजेक्ट हो रहे हैं, उसी समय हमें सावधान होना चाहिए। जैसे एक सामान्य विचारधारा विश्व में व्याप्त होने लगी कि कुछ अरब कंट्रीज़ में बहुत कट्टरवाद होता है, लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से, इसलिए रैशनल दिमाग से सोचना चाहिए, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखना चालू करें तो हमको पता लगता है कि सन 39-40 के पहले तो नहीं था, फिर 40 के बाद ही क्यों होने लगा, कहाँ से उसमें कट्टरता आने लगी। तो हमको ये दिखाई देगा कि चूँकि 40 के बाद वहाँ एक संसाधन प्राप्त हुआ जिसको पेट्रोलियम खनिज कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं। जब पेट्रोलियम पदार्थ पूंजीवादी देशों को मिले तो उनके दिमाग में पहली चीज़ आई कि ये देश लोकतांत्रिक न होने पाए। किसी देश को लोकतांत्रिक होने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ अशांति रहे, जिससे जनता भी कहे कि अरे भाई यहाँ शांति नहीं है, तानाशाही ही ठीक है, कट्टरवाद ही ठीक है। तो ये कहीं न कहीं पूंजीवादी शक्तियाँ हैं जो उनको प्रेरित करती हैं, जो स्थिरता नहीं आने देती संसाधनों की लूट की। और कोई भी देश न तो यूएन में जाके खुल के कह पाता है, सब वहाँ मस्तक नमा देते हैं, कोई खुल के कह नहीं पाता है राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में कि भाई आप पेट्रोलियम लूटने के लिए कौन कौन सा विचार कर रहे हैं। ईरान में ही देखिए तो पहली बार जब वहाँ तो उन्होंने जब नेशनलाइज किया तब जा कर के वहाँ सत्ता जो है परिवर्तन कर दिया, कोई साहब कहानी भी आ गई। मैं उदाहरण केवल एक दे रहा हूँ कि एक खनिज संसाधन की लूट को लेकर सत्ता परिवर्तन किया और फिर
धीरे धीरे वहाँ आतंकवाद का जन्म हुआ। तो इससे लगता है कि पूंजीवादी शक्तियाँ ही आतंकवाद को जन्म देती हैं। मुखरता ही यह कहती हैं कि हम आतंकवाद को मिटा रहे हैं। होता क्या है, अपने बगल एक अफगानिस्तान है, इतने दिन युद्ध चले, अंत में उन्हीं के हाथ, जिनको हम एग्रेसिव लोग कहते थे, जिनको आतंकवादी कहते थे, उन्हीं को सौंप के देश को चले गए। इसी तरह से अगर हम देखें, सीरिया की आज यही हालत हुई। सीरिया में हम उन्हीं को सौंप के चले गए, जिनको कि हमने इनामी घोषित किया था आतंकवादी, उन्हीं के हाथ में सत्ता दे के चले गए। तो जब ये चीज़ें दिखती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, तो ये बातें उठनी भी चाहिए। अच्छा, अब आप ये सोचते हैं कि एक साधारण नागरिक होकर के कोई बात हम उठाएंगे तो इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही विचार करना है, क्योंकि यही हमारी भूमिका, एक नागरिक की भूमिका हम तभी तय कर सकते हैं। एक नागरिक कहेगा भाई हम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के दिमाग को या विचारधारा को या उनकी नीति को तो बदल नहीं सकते हैं, बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, हम निरंतर सत्य को बोलते रहें अपनों के बीच, मीडिया के बीच। जब हमको मालूम है कि पूंजीवादी शक्तियाँ क्या कर रही हैं, तो यह अभिव्यक्त भी होना चाहिए। अभिव्यक्त जुटते जुटते वैचारिक तंत्र का रूप ले लेता है। हम धीरे धीरे मौन होते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं। अगर हम इन चीज़ों का प्रखर विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये आवाज़ें दब जाएंगी और हर नागरिक सोचेगा भाई हमको सुरक्षित रहना है, हम क्यों बोलें। जब ये विचारधारा आ जाएगी तो धीरे धीरे हम मौन हो जाएंगे और पूरी मानवता में सत्य बोलने के लिए कोई नहीं बचेगा। इसलिए छोटा ही सत्य बोले। हम नहीं कह रहे हैं कि जनता आंदोलन कर दे, जनता सड़कों पे उतर जाए, ऐसा नहीं करना है। एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में हमारा जो अधिकार है, सत्य को बिना किसी को मतलब ये हम कहें कि आलोचनात्मक शब्द जैसे होते हैं संवैधानिक शब्दों में, उस सत्य को, उस आलोचना को प्रस्तुत करते रहें, इतना ही कारण है। हम अध्यापक हैं, हम वकील हैं, हम पत्रकार हैं, हम जहाँ भी हैं, अपनी इस भूमिका, इस छोटी सी भूमिका को, इस सत्य की अभिव्यक्त करते रहें। अगर हमको सत्य दिख रहा है, हम सापेक्ष न हो, और सापेक्षता तभी आती है जब अध्ययन थोड़ा सा उथला रहता है कि भाई कहीं पे आतंकवाद दिख रहा है, कोई धर्म आतंकवादी दिख रहा है, कोई समुदाय आतंकवादी दिख रहा है, तो हम पहले ये तो अध्ययन कर लें कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। आज इजराइल जस्टिफाई कर रहा है कि हिटलर के समय में यहूदियों को बहुत सताया गया। भाई यहूदियों को सताया गया तो उसका बदला तो हिटलर से लेगा ना, वो अपने पड़ोसियों से लेगा। पड़ोसी तो उसको सताने गए नहीं थे। वो जो भी यहूदियों के साथ जेनोसाइड हुआ वो तो हुआ दूसरी जगह, तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी जगह नहीं निकलनी चाहिए। तो अब ऐसे सत्यों को मैं एक उदाहरण केवल दे रहा हूँ, ऐसे तमाम सत्य हैं, अपने देश में भी हैं, अब वैश्विक स्तर पे भी हैं, हम संभवतः मौन रह जाते हैं। यही शांति का मतलब होता है, हम चीज़ों को रखें और चीज़ों पर विमर्श करें, एकदम लड़ाई न लड़ने लगे, एकदम किसी चीज़ के सापेक्ष न हो जाए, जैसे एक बुद्धिजीवी वार्ता होती है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया के जो प्रस्तुतिकरण है, अभी मैं BBC पे कुछ समाचार सुनता हूँ तो वहाँ युद्ध के भी समाचार जो है, युद्ध के भी समाचार एक संयत स्वर में आते हैं। और हमारे यहाँ की मीडिया में क्या हो रहा है, अचानक कुछ चिल्लाने लगते, अभी अभी राकेट उड़ा और यहाँ गिरा और अब देखिए ये होने वाला है। भाई उच्चा वचन क्यों इतना प्रोनाउंसिएशन में आप समाचार दे रहे हैं, समाचार की तरह समाचार में। इसका मतलब हमारी मीडिया हमको उस लैंग्वेज लेवल पे ले जा रही है जहाँ हम आक्रोशित हो गए। हमको ये फीडबैक भी अपनी मीडिया को देना चाहिए कि भाई आप यही समाचार, यही इंफॉर्मेशन एक शांत स्वर में दे सकते हैं। पता लग रहा है कि स्क्रीन पर रॉकेट निकलते दिखाई दे रहे हैं और क्या वीडियो फिगर उतना यौद्धिक माहौल बना दिया जाता है। तो जो आपका कहना था कि हम उसी से अंत करता हूँ कि आपका ये कहना था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं इसीलिए जुट रही हैं कि वो जनता द्वारा निर्मित नहीं है, और जनता द्वारा निर्मित कब होंगी, जब जनता आवाज़ उठाएगी।
अभी जनता आवाज़ उठाती नहीं है, उसके लेखों में ऐसे स्वर मिलते नहीं हैं। विश्व में ज़्यादातर गोलबंदी हो रही है, या तो कोई दक्षिणपंथी बना है या तो कोई वामपंथी बना है। इन सर्किल से हम बाहर निकलें, हम विचारपंथी बने, वास्तव में है हम विचार विमर्शपंथी बने, तभी इस समस्या को दूर कर सकते हैं और अभिव्यक्ति को, सत्य को बिना डरे और बिना किसी से द्वेष किए उसको अपना मानते हुए जब हम प्रस्तुत करेंगे, तभी हम नया परिदृश्य और नए संस्थाएं ला पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक हमारे यहाँ प्रोफेसर साहिबा हैं, गुजरात से जुड़ी हुई हैं। जी जी उन्होंने कुछ मैसेज लिखा है सर। कि सर, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न ओवर SDG to SDG 16 because the success of all other goals depends upon the success of this goal. Definitely, ma'am, we agree with your idea and our concern. We took up one by one all the goals, and now we come up to this level. So it is over to any other participants or members sitting in this hall to share their opinion, as we are first resource person has completed. So any question or any feedback or any opinion sharing, forum is open for all. Otherwise we'll be winding up the first part of the talk within next minute. So anybody, if somebody wants to unmute and share something, that's all. किसी का हैंड सब तो नहीं है। Second को बोल लेते। Okay, so we have with us as the second speaker of the day, Dr. Milind Raj Anand ji, who has been a very recent and happy addition to the Department of Humanities and Social Sciences, and this is also from the forum of National Digital Library of India, Madan Mohan Malviya University of Technology and IEEE student branch. I wish to welcome both the speaker, and at the same time I would love to announce one thing, that on 19th of April in ABLT Hall, Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University, the NDLI Club Madan Mohan Malviya University of Technology was awarded as the National Digital Library of India Club of Excellence by the Indian Institute of Technology, Kharagpur, for performing as the best NDLI club in the state of Uttar Pradesh on behalf of Ministry of Education, Government of India. We are strongly motivated and feel that coming up with the aggressive planning of multiple events like such stature, and in the same sequence we covered the we try to cover all 17 goals of United Nations Sustainable Development Goals. Today we have selected the date for SDG 16, and we are having as the second resource person of the day Dr. Milind Raj Anand ji, who is associated with us as the assistant professor in English in the Humanities and Social Science Department, Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, with a doctorate in English Literature from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, RML, NLU, Lucknow. He is UGC NET qualified and a postgraduate from University of Lucknow and a graduate from Mumbai University. He is also he has completed his Masters in Advanced Ship Management from Indian Institute of Port Management, IIPM, Indian Maritime University, IMU,
and a law graduate from University of Lucknow. His research interest lies in African American literature and Dalit literature, subaltern literature, Indian literature in English, and Indian literature in translation. He has published research papers in various national and international journals of repute and presented research papers in various international and national seminars and conferences. He has also contributed in the publication of 2 books where Buddha Bandhana evam Sanskar Vidhi and Vatan, both in Hindi. Both the books enrich the corpus of Indian knowledge system in the field of Buddhist philosophy, tradition and practices, and Hindi literature. He has delivered invited lectures in RML, NLU, Lucknow, and Indian Statistics Institute, ISI, New Delhi, and JN Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barabanki. Besides these, he has also delivered public speeches and lectures on social issues in various districts of Uttar Pradesh to motivate and educate the masses. He has a teaching experience of more than 6 years to law, engineering, science, and arts undergraduates in Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, BBAU, Lucknow. He has also been a mercantile marine officer with a vast worldwide experience of more than a decade as a navigating officer in various capacities in Shipping Corporation of India and various other multinational companies. Very recently, he has also been handed over the nascent responsibility to soldier as the coordinator of the Department of Indian Knowledge System, and there he will be contributing as the establishment of the new department that will be dedicating to the enriching the knowledge of Bharatiya Gyan Parampara. So his rich knowledge makes him a very particular resource person of such a multidisciplinary nature, where he is going to speak on the United Nations Sustainable Development Goal number 16, that is dedicated to the establishment of peace, justice, and strong institution. So without taking much time, stage is handed over to you, Dr. Milind Raj Anandji, and it's up to you to deliberate upon the topic. Yeah, it's all over. Respected Head of the Department, sir, Dr. Sudhir Narayan Singh, sir, respected Registrar, sir, Engineer Chand Prakash Priyadarshi, sir, all the faculties present in the seminar hall, all the dignitaries who have joined this session, and all those who are listening to me. I have listened very patiently to our Registrar, sir, and on this Sustainable Development Goal number 16, what we have observed through his deliberation is that this goal number 16 is encompassing all the 16 or all the 17 goals of the United Nations. This session, as I have come to know, and I have been coordinating with the head of the department, sir, has been enriching this institute
this university, all those people who have been participants here for the past 16 days. And what a notable achievement is that the recent news of India entering within the 100th rank of the Sustainable Development Goals achievement. When I was thinking of speaking today on this particular goal of peace, justice and strong institutions, I found that if I start categorizing these goals, 17 goals, then being a student of science in the early stages, I find that it gave me suddenly a helical structure in my mind. A helical structure, like volcanic structure, with a center, and then the curve is always moving outwards, tangentially moving outwards, the helical structure. What I want to say with this is that at the center, we ourselves are there. I am there. As we learned just now from the deliberations of our Registrar Sir, the Swa is there. Swa, I am there at the center, I am the axis. And if I start moving out, then there are associations around people around. So besides I, there is a concept of we. Besides we, there is a concept of us. All of us. Unlimited, the concept of us. So from center I, we started moving to us. If I categorize these 16 or 17 goals, what I found is that the first 6 goals, they are centrally located, associated or affecting I, person. For example, goal number 1, poverty, 2, hunger, 3, health, 4, education, 5, gender equality, 6, water sanitation. One person is requiring all these things. He wants to sustain himself with all these things. But when we move out, goal number 7, 8, 9, 10, energy, work, infrastructure, industry, minimizing inequalities. This is for we. And as we keep on moving out, so from person to society and from society, if we keep on moving out, it goes and it encompasses into the helical structure of the concept of civilization. When I talk about civilization, that means not only I, not only we start moving out and say sustainable cities, sustainable communities, consumption, production. And then as we further start moving out, we come to the whole of the earth. And that is climate. Goal number 13. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice and strong institutions. And 17, the partnership for these goals. So what I want to say is that it suddenly clicked to my mind that the concept we discussed just now of Vasudhaiva Kutumbakam, this is already there in these 16, 17 goals. But it starts from us. It starts from I. It goes into us. It goes into we. And then all of us. So from the person to society to civilization to earth, this helical structure is keep on moving and encompassing each and everybody, affecting each and everybody. If we start from center, we move outward and affect everybody. If we lose this center, probably we will lose this axis. It is like rotating on that axis. When I was thinking or finding something relevant of what actually it is looking for, then that abbreviation does not exist as an abbreviation in the Sustainable Development Goals website of the UNDG. It does not exist as an abbreviation. But I found that there are 4 words written simultaneously in a particular sentence, and those words say
peace and prosperity for people and planet. I found that they did not give it any abbreviation, it as an abbreviation or an acronym. But I took it as a 4P principle. I remembered it as a 4P principle. Let's talk about it as a 4P principle. 4P principle is like peace and prosperity for people and planet. This is there. This in words is there in the United Nations Development Goals. But let us develop this acronym or an abbreviation of the 4P principles. If you look to the history of what the Sustainable Development Goals is saying, it is moving from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals. That means, just now as we were deliberating on the question answer session to our registrar sir, he said that the idea has to start from somewhere. Things don't happen suddenly. Similarly, the concept or the idea of the sustainability of these goals did not happen suddenly. It started with the Millennium Development Goal. So from Millennium Development Goals, whatever we achieved by that time before 2015, we thought that this is achieving something, or maybe probably leaving out something else. But then will it last for another few couple of years or maybe a decade or maybe a century or not? And therefore the concept of sustainability came. The concept of sustainability is saying that I am having something, and at the same time I also want it to be there for me for the few more or maybe a couple of years to come. And then it also says that for my family and probably my relatives and probably all those people who can benefit from us. This sustainability, the concept of sustainability, if you look to the concept of sustainability, then you also find that our texts, you may call it to be, or we may call it to be spiritual texts, we may also call it to be religious texts, or we may call it to be those principles on which we have based our life in society, and this India has been worldwide hailed as a center or sphere of spiritual beginning. We find that we have always talked about spirituality. We have always talked about sustainability through spirituality. Why have our past been hailed over, been worshipped, been appreciated, or been followed by the world over for more than 1.5 millennia? It is only because the ideological principles in our religion, in our texts, in our day-to-day life talked about sustainability. But do you think, or should we think that it is currently present, or it is present in that novelty as it has been talked about? To me it is not such, because currently what we find is there is a gradual development of I, my, what is there for me, not us, not all of us. This has been a gradual degradation over the past couple of years, maybe a decade, or maybe a century, or maybe a 500 years or so, or maybe 300 or 200 years or so. Now, if we have in discussion of all these things, if I don't consider myself to be follower of all those thoughts which have been coming up for a decade or so, and be critical of what we are getting or what we are saying, then I say that it has not come immediately. There has been a continuous degradation. Similarly, there would have been a continuous upgradation of it. Man, human being, from being a monkey or being an ape, was I, or maybe its own child. From there, if we start, we
we developed into us, into all of us, into this Vasundhara Kutumbakam concept. But gradually we have degraded it from it. And therefore, when we talk about it, I found, when I was researching for the Sustainable Development Goal number 16, what I found is that this Sustainable Development Goal, peace, justice and strong institutions, is keeping peace first. The primary aim. For peace, we need justice. For justice, it is asking us to develop strong institutions. If we look to the preamble of our constitution, the preamble of our constitution very clearly says of justice, liberty, equality and fraternity. Liberty for me, liberty for you all, we all. Equality among us. Fraternity, all of us having a relationship of brotherhood. What is the challenge to it then? If you look to the constitution of our country, India, that is Bharat, having diverse cultures, diverse people, diverse languages, diverse geography. If it would not have been respecting the Constitution of India, or the Constitution of India would not have been taking into account all these diversities, certainly, as we discussed today morning, that probably our country could have resulted into a democracy like Pakistan, or maybe a democracy like Nepal, or maybe a democracy like Sri Lanka or Burma. But it did not happen such, despite having these diversities. Why? Because there was something which was sustaining us for the past 100 years. What was the guiding principle? I commend it to be the Constitution of India, which was the guiding principle for sustainability of these things. The Sustainable Development Goal demarcation came in 2015 and to be achieved in 2030. But let us commend our makers of the Constitution and all the Constituent Assembly people who have thought long back when designing Constitution of India. It's not that after Constitution of India there have not been constitutions designed. Yes, they have been designed, but they have failed long and again. But when you talk about Indian Constitution, it's still there. If we are amending it, it is for the betterment of the country. If we are amending it, if we are sometimes amending it and thinking that it is not contributing that good, we re-amend it. That shows that it is a live document. A live document, that means it has sustainability. It has sustained the test of the time. The Constitution sustained the test of the time for the past 75 years. And probably it will sustain the test of the time for another 500 years. But who has the responsibility for it? It is us. We have the responsibility for it. It is for whom? It is for us. The helical structure has to start from the center and it has to go out. If the helical structure is not having a tangent which is propping outside, probably it will result into a circle. The helical structure will result into a circle. That means it will die. If it wants to grow, if it has to grow, it has to keep moving out and keep moving out for the betterment of most and more and most. So that most of the people can benefit from it. And that is why I say that when you talk about a sustainable document or a sustainable society or a sustainable nation, sustainable country, we have a fine good example of India. But at the same time, if you recall what has happened in the past 20 days or maybe 25 days or maybe not more than a month, and I am sure not more than 20 days, we can recall certain incidences which challenge to the sustainability concept. 2 days back, we found a case of a Kathawachak being disrobed, beaten, tonsured,
tortured, and then they were forced to drink urine only because they were from not from a certain community which claims that they have the right to do it for ages and for ages to come. Why? Because they disrupted the old ancient societal principle. Take another example. The case of Odisha. People were demanded money because people went for buying cows, and they were being demanded arbitrary amount of money. When they refused, they were beaten, tortured, they were made to drink water of the drain, and then they were made to roam with grass in their mouth on their four limbs all over the village. Take another example. A girl of 13 years was raped by 14 men for 2 years. A girl of 13 years was raped by 14 men for 2 years. Take another example. A person used a particular surname in his name and was lynched, beaten to their death. Take another name. If you feel that this was done by people who were from villages, who were not educated, there is a report filed by a trainee pilot in Indigo saying that his seniors, his superiors, his bosses, the captains, they have made his life hell, treated him badly just because he is from a particular community. Now, if we take these examples of the past 20 days, we find that these things, these happening, this thought and this type of life practice questions the concept of sustainability, and therefore the concept questions the concept of peace and harmony. If we say that our institutions, development of institutions, yes, institutions are there. An institution is parliament, an institution is judiciary, an institution is executive. But what I feel most that these institutions are the backup institutions. What is the primary institution? Primary institution is our home. It has to start from our home, from our family, from us as an individual. We need to think human is inhuman. Just now as I said, that it has to start from ourselves. Nobody else is going to teach us what. Consider the situation, if we would not have been having these sustainable development goals, wouldn't we not have been talking about it? Yes, we talked about it, and that is where the Constitution of India came. We have been talking about it, but regular challenges are coming. If we say that these are just random happenings, I have another data to your shock. I have downloaded NCRB report of whole of India, and out of that NCRB report, whole of India, the atrocities against scheduled castes and scheduled tribes. In 2020, we have 50,291. 2021, 50,900. 2022, 57,582 cases of crime registered, documented. And if we say that it could be having in some other part of India, for the UP data is out of 50,000, 15,368 in UP itself. Take another data. If we say that we have been a country which has been respecting our women for long and have worshipped them for ages, now this is the country which is having highest number of rape cases in the world. If we take down this data from 2018 to 2022, the number of rape cases of girls below 18 and of women above 18 are 3,946. In 2018, 3,065, 2019, 2,769, 2020, 2,845, 2021, and 3,690 female ladies, women have been raped in 2022. So this has not happened just now. If we say it did not ever happen in our earlier periods, no, we are mystifying ourselves. We are lying to ourselves and to the society as well. What I want to bring from this extract
I just want to bring from this extract is that we need to be a responsible citizen if we want peace and tranquility in our society and atmosphere. How that responsibility starts? It starts with us. It starts, we need to think, instead of falling into any ism of human, as a human being. Instead of following various isms, try to be human. Humanism. मानव होना अत्यंत आवश्यक है बजाय कि फला 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 चीज. This is what I wanted to say. And therefore, if we feel that we as a society, we as individual are going to excel, and India as a country has, besides so many challenges, has a challenge of peace and tranquility, then yes, the biggest role besides family, the institution of family, the educational institution can play. And therefore we as teachers have huge responsibility among students, that besides teaching them about the curriculum, we need to make them, talk to them, teach them about the basic human values. And therefore the Sustainable Development Goal also talks about those human values. It has given various indicators on which we need to find, we need to judge ourselves, we need to see where we are lacking. It has given various indicators, but those indicators are very limited indicators. Those indicators can grow. The countries are fighting. If we say that it is a case of maybe Israel and Gaza, and Israel and Palestine, and Israel and maybe Iran, or maybe Russia or Ukraine, or maybe some other random things, then we also have various cases of India and China, India and Pakistan, India and Sri Lanka, India and Maldives, and all those places, all those countries. And therefore, if we say that it is just because of our neighbors, we have examples of Naxalism in our country itself. Why this issue has come, why the people have been fighting, we have been fighting with our people, why don't we talk to our people, why can't we find out solutions? Yes, we can find out solutions. We can find out solutions provided we talk. We can find out solutions provided we be inclusive. We can find out solutions provided we are having a sense of fraternity and brotherhood with these people. Therefore, as just now our head of department, sir, has summarized after the first session, that it can only become better only when we start believing in the concept of justice, in the concept of fraternity. With this, I hope the effort of our head of department for the past 16 days, and today is the 16th goal, each day we are covering one goal, has been tremendous in contributing to all those people who would listen to his Facebook lives and would gain certainly from his initiative, as well as the staff, the other teachers who have contributed to this endeavor. I would certainly thank all of them. Looking forward to another session. Thank you. So now the forum is again open for feedback, opinion sharing, or any comment, compliment, whatsoever. And even the viewers can unmute and they can say what should they wish to say. Whatever their opinion, are we going in the right direction? Should we need to change the track, or whether we are in the aligned with UNSDG goal number 60. And I am waiting for the comment. So any participant, whether it is hybrid mode, so somebody wants to share opinion from the physical forum or from the virtual forum, it is open to all. Sir. कोई क्वेश्चन? Anyone, any person from virtual platform?
So I am moving towards winding up the session. Before I come up to the concluding one, today I was asked a question by Dr. Milinji that, sir, being guardian, you keep commenting on me and you tell me some suggestion. So first I will come up to the literary suggestion, then I will come up to the physical suggestion in true sense. So had there been W.B. Yeats alive today, he would have declared you a criminal. Had there been W.B. Yeats alive today, because if you can recall, you said helical shape moving from point to the center to the periphery. And it is what he criticized at the beginning in his poem. If you recall the line, turning and turning in the widening gyre, the falcon didn't hold the falconer. So that's where in that literary philosophy, and that too he was about to give the philosophy of the revival of the new civilization and the beginning of the new era. But new era, where you turned you reversed the principle of W.B. Yeats. But that's the part of literature. You better used it like, how can we, while moving our journey, so we can, from selfhood to selflesshood, you have given that while the gyre is widening, we are becoming more and more selfless and we are becoming more and more responsible citizens. That's where lies the beauty of your talk. So my criticism is for only literary arena. Now coming to the challenges of the society, we discussed the international scenario when in France, Paris, 2 days back, 150 persons were injected syringe. What kind of that mentality we call? And sometime I have a very senior officer and for provincial services and contributing his services. Somewhere responsibility, we are such a nation where every responsibility cannot be left to be soldiered by the state and state machinery, if you agree, sir. Somewhere we need to be aware about, behave as a responsible citizen. That's where you pointed out that the role of home and nurturing of the, upbringing of a kid to a man or a woman. That's where it is required. And there are cases that where father and mother is leading a very peaceful life, very responsible citizens, but kids are behaving in an entirely uncontrolled manner. And there are cases that where means next generation is behaving more responsibly, even better than their parents. So in Sanskrit it comes that कृतानि पुत्रै अकृतानि पूर्वै, पूर्वजों ने जो नहीं किया वो पुत्रों ने भी करके दिखा दिया. That is both in the positive and negative sense. And somewhere we as a nation will always be pride of the institution like our constitution, that dreams for the development, that has a vision at least for the development of the man standing in the last row of the civilization. An ideal democracy or an ideal government or civilization will never be the one that is
developed on the principle of the survival of the fittest. Rather, an ideal civilization will always be the one that depends on that ensures the survival of the weakest. Even the weakest person can stand and lead his life or her life with the, there lies the very soul of inclusivity. That's what I feel. There lies the soul of the, inclusivity, that जहाँ पर एक इंसान जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति है, सिर उठाकर सम्मान के साथ अगर जिंदगी जी पा रहा है, समझ लीजिए वो समाज बहुत आदर्श है. एंड इफ इट इज़ नॉट, so it can be barbarian, it can be uncivilized society. And definitely my comment, my take on that, your talk that, somebody has been 2 days back, he was, his hairs were shaved off and he was forced to, various humiliations because he belonged to certain community. The society should not forget that the most pious book belongs to the preachings of, the preserving the preachings of a person from that community itself. Now, like the person who recited, who gave the preachings of Bhagavad Gita was nurtured, at least not, if not born, he was brought up by, by the lady, by the woman from, Gwala community. And that's where we need to come up with the realization that in a democracy, the value of a person, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ बंदे को तोला नहीं करते, गिना करते. Each individual is having vote share of one. That we must not forget. Somewhere समस्या ये आ गई है कि अपने घर में हर बेटा राजा बेटा हो जा रहा है और हर बिटिया रानी गुड़िया हो जा रही है. दूसरे के घर में जाते ही वो जो है उस घर का बोझ बन जा रही है. एंड दिस इज द प्रिंसिपल. एंड समवेयर we cannot blame everything for the western civilization कि हर कुछ जो बुराई है वो पाश्चात्य विचारों के कारण है. अगर ऐसा होता तो पाश्चात्य जगत में सारे लिवेबल सिटी जो है 10 के 10 उधर नहीं होते. अगर ऐसा होता तो सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजरमेंट में सारे फॉरेन के सिटीज़ नहीं आते. हर चीज़ की देखिए, वी कैन नॉट से दैट ऑल द ईस्टर्न इज गुड एंड ऑल दैट इज वेस्टर्न इज बैड. समवेयर वी नीड टू गिव एंड टेक. वी नीड टू अडॉप्ट गुड थिंग्स एंड वी नीड गुड प्रैक्टिसेस एंड वी नीड टू. हमें आपको ये बात कहने में कोई वो गुरेज नहीं है. महात्मा गांधी का लोग कहते होंगे कि वो इंडियन फिलॉसफी के स्पीकर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे. मैं ये मानता हूँ कि गांधी वॉज नॉट ऑल इंडियन. सारे विचारधारा उनके भारतीय नहीं थे. महात्मा गांधी ने उन्होंने एक बुक पढ़ी थी. उस एक बार जब वो जेल में गए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान द टाइटल ऑफ द बुक वॉज सिविल डिसोबीडियंस and it was written by an American author, H.D. Thoreau. Henry David Thoreau wrote that book and Mahatma Gandhi went into prison. और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जो है इस किताब से रूबरू नहीं हुआ, मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन का सही अंग्रेजी अनुवाद या साहित्यिक और जीवनोपयोगी अनुवाद नहीं मिला. दिस इज द रियल ट्रांसलेशन. वाई इज इट सो? वो बुक सिविल डिसोबीडियंस हमारे ऊपर भी कमेंट करता है. वो कहता है सर हमारी कम्युनिटी को, सारे टीचर्स हैं, आप लोग सुनिए, ऑल दी हाइब्रिड एंड फिजिकल मोड पार्टिसिपेंट. वो ये किताब कहती है कि देयर आर प्रोफेसर्स ऑफ फिलॉसफी बट नो फिलोसोफर्स. दर्शन को पढ़ा पढ़ा के मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले तो प्रोफेसर हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार सकने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है. देयर आर प्रोफेसर्स ऑफ फिलॉसफी बट नो फिलोसफर. ये हमें अपने अंतरात्मा में घुस के झांकने की ओर भी वो झांकने का वो करता है. बट एवरी सोसाइटी, एवरी पर्सन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग
wheresoever, in whatsoever capacity, has to look inside. तभी ये सोसाइटी का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड माने होगा. Strong institutions are there, they required there, they are backbone of the society, they are, pivotal for the establishment of peace, justice and strong institution. But while talking on, my first resource person focused on peace, and prime focus was peace. My second resource person focused on, justice, and my focus is that whosoever is the stakeholder, whether you said family as an institution, whether you talk about community as an institution, whether you can talk about take the school as an institution, higher education institution as an institution, engineering institution as an institution. आप ये देखिए कि अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. एंटी वायरस पूरी दुनिया बनाई, बट दुनिया के पहला वायरस का खोज पाकिस्तान में हुआ. फर्स्ट वायरस वाज इन्वेंटेड बाय अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है ही नहीं. crime and you can say terrorism is institutionalized. That's why they are suffering. But somewhere we need to strengthen the institution right from the family to the, you can say, judiciary, executive or other machineries. Only then we can hope for the better society. That's where I would like to stop my talk. Sir? Then beforehand, I would like to hand over the stage to the coordinator of the program who used to coordinate for last, for last 15 days. We took up the bigger challenge, and it was possible only because of her. So for the vote of thanks, stage is over to Dr. Anjali. Thank you, sir, for the opportunity. I want to thank Dr. Sudhir Narayan Singh, sir, DM Pandey, sir, NDLI Club for giving me this opportunity. I want to thank Registrar, sir, and Milind, sir, Prabhakar Tiwari, sir, and especially Registrar, sir. He took time for this session from his busy schedule. Thank you so much, sir. It was indeed a very enriching session. Thank you, Milind, sir, for a very thought-awakening session. It was extremely insightful and full of knowledge. And I also thank the faculty members, Dr. Priyanka ma'am, Dr. Sonia ma'am, Javed sir, and Ugrasen sir, and Pandey sir for being there. Thank you so much, sir. And also the NDLI Club for bringing such sessions to the notice of the people. Sustainable development goals is not a small issue. India has secured the 99th position in these sustainable goals, and everyone is talking about it. So this entire 17 days program has been designed in such a way to bring an awareness and awakening among the people that for the development of the entire nation, we need the collective effort of the people, and it is only possible when we all are aware about the issues which is there in the society. Thank you so much, sir. Thank you, Radha Gautam ma'am, for being a part of this session. It has been pleasure having you all, and thank you so much, everyone. Thank you. Thank you all. Thanks to the Star Sir, and thanks everybody for teaming up with us. It's possible only because of your support and your cordial gathering and the power of listening. And thanks a lot. Radha ma'am is writing somewhere. It was really an enriching session. So I read your comment and remark, ma'am, for each and every participant. We are heartfully extending our best wishes to all the participants. We are about to one step ahead, about to reach to the binding of this session. Everyone whosoever is contributing is I wish to extend my thanks to all of them on behalf of 3 organizing team, that is NDLI Club Triple MUT,
and Department of Humanities and Social Sciences, Madan Mohan Malviya University of Technology, and IEEE student branch, IEEE student branch, and Prabhakar Tiwari Saab, and again to HOD, Department of Management Studies, for providing us infra so that we can host the event for all 16 days seamlessly. Thank you one and all. We'll assemble back again with tomorrow at 11 a.m. with the final United Nations Sustainable Goal that will be dealing with partnership among the goals, and valedictory will be on the 30th of this month, where Sustainable June will be concluded. Thank you one and all. नेटवर्क है नहीं लगता ना।